Sudhi, you can unmute yourself. Now it is audible. Yes, yes, it's perfect. A very good evening to all in Pruzal Atmanthan talk show. As we know that the self-introspection is an important for every stages of our life, and for this, in Pruzal Society, we have formed this Atmanthan platform to give at least 1 hour in every week for ourselves. As you know that we are facing a global pandemic which is known to be as COVID-19. This is highly infectious and contagious disease and have a profound psychological effects on our health. It is not particularly for affecting the individuals, those who have infected. It's also affecting the healthier one because of mental stress. And see, it's fact that our response to this disease is not only based on medical knowledge, but it's also based on the psychological factor. So with this words, we know that the psychological consequences of global pandemic affects the social fabric as well. Presently, it is necessary to pay attention on the factors which are associated with the stress, depression, anxiety, and we have a very special person with us, uh, Dr. Sudhi Kulshrestha. She is clinical psychologist, PMR department from Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow, India. She worked at Max Hospital, Delhi. She did her doctorate from Amity University, Lucknow, India, and she is specialized in the treatment of stress, depression, anxiety, dementia, phobia, as well as mental retardation. And as per today's scenario, it is really a need of time to be cope up ourselves from such a condition so that we can live a healthier life. And for this, without wasting time, it's an honor for me to invite Dr. Sudhi Kulshrestha ji. Over to you. Thank you so much. First of all, I would like to thank the Prizzle Group for giving me such a beautiful platform, virtual platform, to express my views regarding the mental health. And especially great thanks to you, Professor Preeti Tagre, for inviting me to this. It's my pleasure. Thank you. And yes, of course, as you said, this corona infection or COVID-19 is affecting globally, and every person everywhere is affected physically as well as mentally. As we Definitely. said, we have two types of body, one is physical and one is mental. So primarily we say, see, COVID is affecting primarily the physical aspect of the body, right? We have infections, it is symptomatic, we have fever, we have cold, different type of history we are finding na. So now we have different, these days government are providing different types of precautions also at primary level, secondary level, tertiary level, many preventions like wearing of social, mask, use of hand sanitizer, then your frequent hand washing. These are preventions at physical level. But what about the mental health? The COVID-19 is affecting on a secondary level to our mental health, because this pandemic is very new to us. Even our parents, grandparents, they are also facing this for the first time. Although we have pandemic situations earlier also, we have cholera there, we have TB, we have polio types of different pandemic situations. In fact, in recent we have swine. But Swine, Ebola, this, yeah, exactly. yeah, but this COVID-19 is on, we have on a different scale. We have different experience with that, this, and everybody is having different kind of fear, different kind of thoughts,
how to deal with this thing. And we have no prevention as such now. We have no confirmed medicine. So what kind of things people are getting at their mental level, what kind of perception they having. So I'll discuss these topics today so that I'll try my best to sort out the things, the mental issues the people are having. So before going to start, firstly, I'll share my slides to the audience. Is this visible? Yeah, it's visible. Slide share. So as I said, COVID-19 is not only primarily it is affecting the physical aspect, it is also affecting the mental part. So the topic of my today's discussion is coping with psychological issues with mental health challenges during COVID-19. If we say about the mental health, so there is not a particular group, not a particular age, not a particular gender which is affecting. If we say it is a all the population, हम अगर बात करें, if we talk about the males, females, gender wise, if we talk about the age group, the old age group, the children, everybody is suffering from mental issues. They have different type of stress, anxiety, and there are different reasons for that. So according to the surveys, if we see the surveys, according to the Indian Psychiatrist Society, there is a 20 to 30% rise in mental health cases, which shows that at least 1 in 5 Indian person are suffering from it. यानी 5 में से हम में से एक लोग इससे सफर कर रहे हैं. कहीं ना कहीं we have tensions, we have anxiety, frustration, because जितने भी experiences अभी तक आए, we have never seen those experiences, those lockdown period, then unlock phase, then unlock 2 phase, now it is 3, and there is everybody is going, सबको अपने प्रिवेंशन लेवल अलग अलग. ये सारी जो हमने नया ऑप्ट करा है मास्क वगैरह, कभी किसी ने देखा ही नहीं था, कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि इन दिस 2020 these types of realities we have to face, right? Rather than resolution, this year we have new realities. For example, we have work from home, we have homeschooling, we have physical no contact with the persons, social isolation. So these are the challenges which we are facing, and ultimately they are creating mental health issues on the secondary level, right? So what are the, rather than taking a particular group or a particular, for example, student, I am taking the general population. What are the things, mental issues the general population are facing? The first thing is fear, which is very common. बच्चों में, बड़ों में, everybody is facing the same thing. I am using bilingual because it is easy to understand for all. So fear is regarding the illness, regarding the consequences of the disease, कि क्या होगा अगर हम infection catch करते हैं तो कैसे क्या होगा, बीमार हो गए तो हमारा आगे कैसे treatment होगा. Both ways it is getting. Then anxiety and depression. Anxiety and depression related to this thing only, कि घर में हम अब कैसे manage करेंगे. We have financial crunches now, we have temporary unemployment, we have education system हमारा change हो गया है. People are doing, students are doing virtual, we're using virtual applications. So anxiety and depression, कहीं ना कहीं screen time is increasing and live chit chats are decreasing. Suicidal thoughts, because of continuously bombardment of thoughts, depression, negative thoughts हमारे पास इतने collect हो गए हैं. We have nobody to share. जो हम बाहर जाते थे दूसरों से शेयर कर लेते थे, चिट चैट कर लेते थे, या कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते थे जिससे हम उससे रिकवर कर पाते थे. बट नाउअडेज वो सारा सब कुछ खत्म हो चुका है. सो पीपल आर गेटिंग सुसाइडल थॉट्स की अब हम हार रहे हैं, हम इन सिचुएशन से हाउ वी कैन डील. पैनिक अटैक्स in hospital, I have seen many people, in fact patients से ज़्यादा जो उसके relative होते हैं. For example, if a children is suffering from corona, mother को panic attacks because of the stress and anxiety कि अब ये कैसे ठीक होगा, या husband को है,
गैस्प करते हैं, वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच आर वी फेसिंग, एंड अगेन इट इज अ मेंटल हेल्थ इशू रादर देन फिजिकल सिम्टम, कि उसको कोई और बीमारी नहीं है, बट जहां वो देखती है कि कोविड के पेशेंट उसके अपने घर में आ रहे हैं, या मेल्स को कैसे डील करना है, क्वारंटाइन जाना है तो 14 डेज वो हॉस्पिटल में, हाउ ही विल स्टे. These are the things which are creating panics in people. Obsession compulsive disorder, frequent washing of hands, सफाई करना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, इसमें वायरस तो नहीं आ गया, उसमें वायरस तो नहीं आ गया, हमने उससे बात करा था, कहीं उस कंटैक्ट से वायरस तो नहीं आ गया. रोज का एवरी टाइम वी आर टेकिंग बाथ एटलीस्ट 3 times अ डे, जो हम मॉर्निंग में लेते थे, आके कहीं हमने किसी चीज को छू लिया. इवन इन ऑफिस एनवायरनमेंट ऑल्सो पीपल आर गेटिंग दिस थिंग कि कहीं किसी से इन्फेक्शन ना हो, डोर के हैंडल से इन्फेक्शन ना कैच करे. सो एवरी टाइम एवरीबडी इज डूइंग क्लीनिंग, कुछ ना कुछ सैनिटाइजर वाइप्स लेके क्लीनिंग हो रही है. So if it is hampering the regular routine, of course when we are spending more time on these things, ये हमारे कहीं ना कहीं रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है और एक टेंशन क्रिएट कर रही है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी से इन साइकोलॉजी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. Then PTSD is post traumatic stress disorder. This is again when we somebody loses his close ones, किसी की डेथ हो जाती है, कोई कैजुअलिटी आफ्टर कोविड कोरोना इन्फेक्शन से हो रही है, या घर में सारे मेंबर्स इस तरह से इन्फेक्शन से हो रहे हैं, तो आफ्टर दैट जो पोस्ट इफेक्ट होते हैं, उसमें जब पेशेंट जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर ट्रॉमा में जाते हैं, दैट वी कॉल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. We have seen many people जो पूरी फैमिली इज इन्फेक्टेड एंड वन ऑफ देम इज नो मोर, वो उनको देखने भी नहीं जा पा रहे हैं, उनसे मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई किसी सिटी में एंड हॉस्पिटल में कोई कहीं पे कैजुअलिटी होती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेस, अ डिप्रेशन इन देयर माइंड. देन यूज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यूजेस, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है, ड्रग्स है. अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपने को डील करने के लिए, बिकॉज दे आर इन अ पैक्ड जोन, अपने को एक क्यूबिकल में बंद कर लिया है. 10 to 12 hours they are working, so they are using different ways to make their self stimulus जो लेना है उन्हें. They are using different kind of drugs, alcohol, smoke. So again it is a creating a mental stress on the people. What is the reason behind all these? टेंशन का बात करी हमने, स्ट्रेस की बात करी, डिप्रेशन करा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, बट व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजन हो रहे हैं? ऑब्वियसली दिस इज न्यू फॉर अस, सारे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए नए जा रहे हैं. हम कभी इतने महीनों के लिए, फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months हम एक तरह से बंद हो गए हैं. अगर बाहर भी जाते हैं प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, तो व्हाट आर द रीजंस जो ये सारे स्ट्रेस को डील क्रिएट कर रहे हैं? वन इज फिजिकल एक्सर्शन, ये सबको फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, काम बढ़ गया है लोगों का. जैसा कि मैंने कहा, पीपल आर डूइंग क्लीनिंग एवरी टाइम, बात ले रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट वेजिटेबल्स हैं तो उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्लीन करने के लिए, कहीं कहीं ओवरली कर रहे हैं कि सर्फ में या साबुन में भी उसको क्लीन कर रहे हैं. सो दीज आर लीडिंग टूवर्ड्स फिजिकल एक्सर्शन. एंड जब हमारी बॉडी थकती है तो कहीं ना कहीं तो दैट हैप्पी हार्मोन हमारा जो है वो रिड्यूस होता है. दैट रिडक्शन ऑफ हैप्पी हार्मोन विल लीड्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी. सेकेंड इज आइसोलेशन. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, लोगों से नहीं मिलेगा तो नहीं रह पाएगा, चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट हो, बट ही नीड्स अ बडी, ही नीड्स अ बडी टू शेयर देयर व्यूज. अब बिल्कुल आइसोलेशन में उसे रहना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहना है, वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है. तो जिस तरह से हमें भूख लगती है, दिस इज काइंड ऑफ हंगर इज हमारी ड्राइव है, ऐसे ही मिलना हमारे लिए, कॉन्टैक्ट, दूसरों से बात करना, चिट चैट करना इज अगेन अ ड्राइव विच वी नीड. और उससे भी हमारी बॉडी खुश होती है, वी फुलफिल आवर इनसाइट्स. सो आइसोलेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन रही है. Then increased workload, especially this is for those who are working as an active warriors. This time the hospital staff, the police staff, and those who are on the front, जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, the cleaning staff, उनके लिए इस वक्त ये एक्स्ट्रा वर्कलोड इंक्रीज हुआ है, which again creating a stress. ये सब कुछ stress and fear of infection,
उन्हें अपना भी इन्फेक्शन का डर है। अगर हम स्टैट्स को देखें तो सारे कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं, दे आर ऑन हाई रेटिंग, उन लोगों में ज्यादा मिल रहा है ये इन्फेक्शन। एंड वर्कलोड ऑब्वियसली इन लोग का 24/7 का जॉब हो गया है, तो इंक्रीज हुआ है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। अगेन इट इज लीडिंग टूवर्ड्स द स्ट्रेस, disturb timetable and inconsistent routine. Earlier we have a particular routine कि we have to go 9 o'clock sharp in the morning and अपना वर्क स्टेशन पे हम लोग पहुंच जाते थे, बच्चों का स्कूल का टाइम हुआ करता था। बट दिस टाइम एवरीथिंग इज हैपेजेड, कुछ भी सिस्टम नहीं है, कभी भी खा लिया, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए। काम सारे वर्क फ्रॉम जो जितने भी लोग कर रहे हैं एमएनसीज के या इंजीनियर्स वगैरह या दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम दिस स्क्रीन, उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है। इवन उनके अब रात में भी स्केड्यूलिंग हो रही है, मीटिंग, सब कुछ ओवरनाइट काम कर रहे हैं। सो व्हेन वी डिस्टर्ब आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, व्हेन वी हैम्पर आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, कहीं ना कहीं दिस विल लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस। जब हमारी नींद हमारे टाइम पे पूरी नहीं होती, जब हम उठते टाइम पे नहीं है, हम खाते टाइम पे नहीं है, तो दिस विल अल्टीमेटली हैम्पर आवर मेंटल हेल्थ। Then lock themselves inside their rooms. I have experienced few patients जिन्होंने अपने को एकदम बंद कर लिया है। लॉकडाउन मतलब उन्होंने अपने को रूम में लॉक कर लिया है, या those who are in quarantine phase, वो लोगों ने एकदम सोशल कनेक्टिविटी भी बंद कर दिया। एंड दे आर गेटिंग थॉट्स कि अब क्या होगा, मुझे हल्का सा सस्पेक्ट्स जो होते हैं ना कि हल्का सा आज मुझे कोल्ड हुआ, नाउ आई एम गेटिंग इनटू अ क्वारंटाइन। उन लोगों के लिए इमोशनली दे आर गेटिंग वीकर। इवन 2-2, 3-3 दिन तक वो लोग नहा नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, क्लोथ चेंज नहीं कर रहे। सो दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू अ वीकर इमोशनल हेल्थ। Then cancellation of exams or important events. As I said, I am taking the general group, पूरा overall सभी के लिए. So इस वक्त जो लोग अपना करियर के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स 10th या 12th के जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे, या दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस, उनके लिए दिस टाइम इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आगे क्या होगा, कैसे रैंकिंग होगी। एंड इस वक्त उनका फ्यूचर का, करियर का पीक है, तो एवरीथिंग इज इन डिलेमा कि कैसे डिसाइड होगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ लोगों की वेडिंग रुक गई, कुछ लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो अब्रॉड में जाके किसी की मीटिंग थी या सब था, वो सारे चीजें रुक गई हैं। फैमिली प्रेशर, आपस में वी हैव एक्सपेक्टेशन विद एवरीवन। हस्बैंड है तो उसके अपने रोल हैं, वाइफ है तो उसके अपने रोल हैं, बच्चे हैं तो उनके अपने रोल हैं। बट दिस टाइम सबके जो रोल्स थे वो शटर डाउन हो गए हैं। जिसको जो काम मिल रहा है वो कर रहा है, नहीं तो सब अपने अपना बैठ गए हैं। फाइनेंशियल क्रंचेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं हेवे हो रही हैं। दैट्स व्हाई अगेन क्रिएटिंग अ स्ट्रेस एंड प्रेशर। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रिसेशन आ रहा है, तो एम्प्लॉयज पे भी एक वर्क प्रेशर पड़ रहा है कि वो ऐसा क्या करें कि दे विल कंटिन्यू देयर जॉब। पता नहीं नेक्स्ट मंथ उनकी जॉब कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं। स्पेशली इन यंग ग्रुप, जो 20 से 30 वाले ग्रुप हैं, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस थिंग कि उनका कहीं वर्क प्रोफाइल हैम्पर ना करे, कहीं उनको जॉब से हटा ना दिया जाए। वरीज अबाउट फ्यूचर, ये सभी एज ग्रुप में है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, यंग हों, इवन ओल्ड एज में भी। अब आगे क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से, ये इन्फेक्शन तो जाना नहीं है एंड वी हैव नो अभी एज सच रेमेडी फॉर दिस। हम आगे कैसे मूव करेंगे, कैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ डील करेंगे। सो दिस इज अगेन वन रीजन। फियर ऑफ हेल्थ इश्यूज, हमें डर है कि विल नॉट कैच एनी इन्फेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द दूसरे लोगों से हमें ना मिल जाए। इनफैक्ट अब अपने ही लोगों में है तो भी नहीं पता लग रहा है, बिकॉज इट इज एसिम्प्टोमेटिक। देन दोज पेशेंट्स हु हैव कोमॉर्बिड डिजीजेस, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई और कंडीशन है, वो ज्यादा इस वक्त टेंस है कि कहीं हम ऐसा ना हो कि इसको क्योर ना कर पाए या इससे ऊपर ना उठ पाए, कहीं इसी में हम कहीं ना कहीं किसी तरह से नुकसान ना हो जाए। तो इस इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा फेयर में है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको लेकर परेशान है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली. इफ अ पर्सन जो हेड ऑफ द फैमिली अगर इन्फेक्टेड हो गया एंड इफ ही इज गोइंग फॉर 14 डेज ऑफ क्वारंटाइन पीरियड, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत सारे थॉट्स भी ले लेता है कि वेदर ही विल गेट बी ऑल राइट और नॉट, कितने दिन में रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, फिर आगे इन्फेक्शन रिपीट तो नहीं होगा, रियाकर तो नहीं होगा. सो he has many queries and questions, and again responsibility और family उसको stress create करती ही है. Online work pattern, this is a new term for all of us. Even computer engineers भी इस वक्त जो full time computer screens पे रहते थे वो भी अब fed up हो गए हैं 24/7 screen पर बैठने से. Screen is a big because it makes us concentrate, एकदम उस पे हमें ध्यान देना पड़ता है. It affects our body physically also because we have different kind of spondylitis, हमारा अगर posture ठीक ना हो, and if we sit for a continuous for a 10 to 12 hours, कहीं ना कहीं हम अपनी physical activities से दूर हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत important है. So online work pattern is again creating a stress. So these are the reasons, and these which leads to depression and anxiety. Now I'll tell you through an example or a case study pattern कि हम अपने को पहचाने कैसे कि हम we are in depression or we are struggling with something mental health issue. Because फिजिकल तो हमें दिखाई देता है, वी कैन मेजर आवर टेम्परेचर, वी कैन मेजर आवर सिम्टम्स, हमें कफ है, कोल्ड है, इवन पार्शियल ऑक्सीजन लेवल भी इस वक्त सबको पता है कि अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है घर पे. बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ, ये तो किसी को भी नहीं पता कि कैसे मेजर होगा, या हम कहीं ना कहीं टेंस डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं. जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, स्पेशली दीज डेज आई एम एक्सपीरियंसिंग, पेशेंट कहता है आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन इज सच अ कॉमन टर्म जो हम डायग्नोसिस दिया करते थे कुछ साल पहले, अभी सबके मुंह पे है कि हम डिप्रेशन, बच्चे को भी मालूम है क्या हो रहा है जी, डिप्रेशन हो रहा है, एंड इट इज सो कॉमन, लेमैन टर्म बन गया है. पेशेंट कहता है आई एम इन डिप्रेशन, तो लोग कहते हैं अरे व्हाई आर यू सो सैड, स्टॉप बीइंग सो सैड. ये तो सबके साथ होता रहता है, जनरली घर में भी पेरेंट्स कह देते हैं या एक दूसरे को कह देते हैं, ये तो चलता रहेगा, दिस इज द टाइम, व्हाई आर यू सो सैड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एक टाइम पे ठीक हो जाएगी. इट इज जस्ट इन योर हेड, तुम सोच रहे हो, इट इज जस्ट योर थॉट्स, यू आर परसीविंग दीज थिंग्स, बट कहीं ऐसा लग नहीं रहा. वो किसी को बताना भी चाह रहा है ना, तो उससे कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि सब अपने अपने उलझनों में है, कोई उसको समझ नहीं रहा है. देन ही रियलाइज कि अच्छा आई हैव एवरीथिंग, अभी मेरे पास घर भी है, चल रहा है, खाना है, अभी एट प्रेजेंट आई हैव फैमिली, बट स्टिल समथिंग इज गड़बड़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आई एम फीलिंग वीक, दिस इज द मेजर सिम्टम्स विच वी डिफाइन डायग्नोसिस के लिए डिप्रेशन के, जो हम देखते हैं ऑन ऑब्जर्वेशन. पेशेंट कहता है आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग पावरलेस, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है. कभी कभी ये कोरोना के सिम्टम से भी मिसमैच कर देते हैं कि कोरोना के भी सिम्टम्स हैं कि उसमें वीकनेस होती है, लेकिन डिप्रेशन भी एक कारण है जिसमें पेशेंट अपनी बॉडी में ताकत फील नहीं करता, ही इज नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली, इवन खाना पीने में भी उसका मन नहीं लगता, ही फील्स हिमसेल्फ वर्थलेस कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ. कभी अपने को चोट पहुंचाता है, कभी दूसरों पे गुस्सा करता है, इवन फिजिकल हार्म तक करते हैं. समटाइम्स आई फील सैड, वो बोलता है कभी मुझे कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी उदास होता हूँ कि कैसे सिचुएशन से डील करूंगा. समटाइम्स आई फील सैड ऑल द टाइम, कभी कभी उसका पूरा दिन निकल जाता है. एंड बिलीव मी, ये हमारे साथ सभी के साथ कहीं ना कहीं होता है, बट द रेशियो, द परसेंटेज इज डिफरेंट. हम कितना उससे डील करते हैं एवरी डे. कहीं ना कहीं हम लोग भी सोचते हैं आज मेरा वो 1 घंटा अच्छा नहीं गया, या आज का दिन पता नहीं क्या हुआ है मुझ में. स्पेशली इन लॉकडाउन जो लोग क्रिएटिव नहीं रहे या जो फुल टाइम ऑन बेड रहे, उनके साथ ये सिचुएशंस आई हैं. दैट्स करेक्ट, बट आई एम इन फीयर, वो एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं उसे डर है इस पेंडेमिक का, क्या होगा, चाहे वो सोशली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, हर तरह से एवरी साइड उसका जो है वो उसे फियर में कवर कर रहा है कि कैसे वो उनसे ऊपर उठेगा, कैसे वो आएगा. What kind of reactions a patient feels?
fear or worry related to yourself and your loved ones. हमेशा चिंता बनी रहेगी, उसके पास पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं रहेंगे, वो हर वक्त चिंता में रहेगा कि कैसे करें, क्या करें, इसको कुछ ना हो जाए, अब ये इसको इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी ने जरा सा भी कफ स्नीज कर दिया तो इसको कोरोना तो नहीं हो गया। एवरी टाइम उसके अंदर ये थॉट्स चलते रहेंगे। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, जब भी हमारे ब्रेन में अनस्टेबिलिटी रहती है, जब हमारे पास बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स रहता है, तो सबसे पहली चीज जो हैम्पर करती है दैट इज आवर स्लीप साइकिल। चेंजेस इन स्लीप, वो पूरी पूरी रात करवटें बदलता है, नहीं सो पाता है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी भी चीज में काम ध्यान लगाने में उसका मन नहीं करता है। क्रोनिक हेल्थ अगर कोई इशू होता है, स्पेशली जैसे डायबिटीज, आई एम सेइंग कोमॉर्बिड हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वर्स होते हैं, इंक्रीज होता है। देन कुछ लोग इसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको, कहीं ना कहीं वो गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। एंड दिस विल लीड टू अगेन मेंटल इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, इरिटेशन, फ्रीक्वेंट क्राइम, घर में चिल्लाना, कभी खुद ही रोना, कभी खुद ही समझ नहीं आना, तोड़ फोड़ कर देना, बंद हो जाना कमरे में, किसी से बात नहीं करना, नहीं मन लगता है। These are the symptoms which are people facing these days. Suicidal thoughts. In past days, अभी जो लॉकडाउन गया या अनलॉक फेज आया, we have many cases जिसमें हमें पता लगा है कि सुसाइडल रेट्स बढ़ गए हैं। इवन यंगस्टर्स में, दोज हु आर वेरी करियर ओरिएंटेड, बहुत सारे एक हाइक आया है सुसाइडल रेट्स में। इतनी सारी बातें बताई, रिएक्शंस बताए, स्टेजेस बताई कि स्ट्रेस क्या है। सबको लग रहा होगा कहीं ना कहीं सबके साथ ही ऐसा होता है, नथिंग इज डिफरेंट, कहीं ना कहीं कुछ है। बट जो पेशेंट डिप्रेशन में होता है उसकी प्रॉब्लम रियल होती है, उसके साथ समस्याएं ज्यादा होती हैं। उसको भी लगता है कि कहीं ये सबके साथ होता है, मेरे साथ क्या अलग है, क्योंकि वो उनसे डील नहीं कर पाता है और रेस्ट ऑफ द पीपल उससे डील कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। उसे नहीं मालूम हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे वो उस पर काबू करे, वो थॉट्स को कैसे रोके, वो लोगों से कैसे मिले। वो इतना अपने को लो सेल्फ एस्टीम साइड पे रखता है कि लोगों से बात करने में झिझक रहा है, लोग कैसे उनसे डील करे। कभी कभी ख्याल आता है कि सब छोड़ देता है, इवन हेड ऑफ द फैमिली को भी ये ख्याल आता है, जहां तहां एक तरफ उसके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि अब सब खत्म कर देते हैं, अब नहीं रहा जाता। इट्स बेटर टू कमिट अ सुसाइड रादर देन फेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैमिली। दिस इज डिप्रेशन, दीज आर मेंटल इश्यूज जो लोग कोविड-19 में फेस कर रहे हैं। ही फील्स अनवर्थी, उसे लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ही ट्राइड हिमसेल्फ, वो कई बार कोशिश भी करता है अपने आप को सबसे निकालने के लिए, हर चीज को हटाना चाहता है कि मैं वापस से जैसे सेटल करूं, लेकिन फिर वही नॉर्म्स, वो जो बीमारी चले आ रही है वो चेंज ही नहीं हुआ है सिनेरियो, ना कोई एक्टिव मेडिसिन आई है बाहर, अभी भी वही सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उसको मिल रहा है, आइसोलेशन अभी भी है। वो कैसे उन सब से बाहर निकले, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। खाली बैठे हैं पूरे दिन, वही स्कैरी थॉट्स की अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे निकलेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे अगर हम बीमार हैं। दोज पेशेंट हु आर इन हॉस्पिटल, इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, वो लोग भी तरह तरह के थॉट्स ले रहे हैं, कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हम बीमार हैं, हमारे सिम्टम्स फ्लेयर अप ना कर जाएं। आई हैव वन पेशेंट इन टेली काउंसलिंग, शी वॉज गुड एनफ, उसको बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं थे, बट इतना पैनिक थी कि उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। देन आफ्टर काउंसलिंग व्हेन वी मेजर्ड हर लेवल, वो बेटर थी। दैट मीन्स कि जो उसका ऑक्सीजन लेवल था दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कोरोना, कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सो दिस इज पेशेंट फील्स सॉरी कि अब कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता, लॉस्ट हूँ, आई एम नॉट ओरिएंटेड, मुझे किस दिशा में जाना है, क्या करूँ मैं, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो,
एक घर का फैमिली मेंबर हो, हाउस वाइफ हो, ये सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है। नहीं मालूम, लॉस्ट एक जगह पे, लॉस्ट वर्ल्ड में, कि हमें अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, क्या हमारे रोल्स हैं, कैसे हम पूरा करेंगे। सारी इमेज अनक्लियर होती है, धुंधली होती है। बट लोगों को लगता है कि अरे थोड़ा सा प्यार करेंगे, केयर देंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एंड द पर्सन जो थोड़ा सा ऑड वन आउट दिख रहा है वो ठीक हो जाएगा। बट एज पर द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होता। यस, ऑफ कोर्स, लव, सिंपैथी, केयर इज important फॉर अ पेशेंट who is suffering from mental health issues, but again he needs counseling, he needs proper treatment. According to us, as a psychologist, I'll say it's okay to not be okay. अगर हम ठीक नहीं है इस वक्त, that is completely fine. इस सिचुएशन में व्हेन वी हैव इमरजेंसीज, हर कोई रिएक्शन देता है, तो अपने को समझाइए। ये दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग कि हाउ वी विल कोप अप विद द स्ट्रेस। अपने को बताइए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है एंड एवरीबॉडी इज सेलिंग इन द सेम बोट, एंड ग्लोबली एवरीबॉडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। ये हमारे साथ नया नहीं है, एंड ओनली आई एम नॉट द सफरर, सो व्हाई शुड आई टेक द स्ट्रेस। सभी के साथ हो रहा है ना, सभी लोग डील करेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। शी शुड हैव सम पेशेंस। और इमरजेंसी सिचुएशन का हमेशा स्ट्रेसफुल रही है क्या? वर्ल्ड वॉर बहुत हैपनिंग आया था, या ये कोई भी बीमारी आती है बहुत हैपनिंग, या बर्थडे पार्टी टाइप्स तो नहीं आती। एवरी टाइम इमरजेंसीज आर स्ट्रेसफुल, सो वी शुड हैव आवर माइंडसेट कि ठीक है, जो भी हो रहा है ये इमरजेंसी सिचुएशंस में हो रहा है, एंड थिंग्स आर गेटिंग, अभी हमारे पास वी हैव गुड रिकवरी रेट ऑफ पेशेंट। जो एक टाइम पे था हमारे पास केवल पेशेंट्स, अफेक्टेड पेशेंट्स के स्टैट्स आते थे, नाउ वी हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ रिकवरी पेशेंट्स। एंड ये सब कोर्स अभी धीरे धीरे हमारे पास न्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन की, कहीं हर जगह रिसर्च चल रही है, एंड पीपल आर डेवलपिंग मेडिसिन ऑल्सो। देन हमें सोचना चाहिए कि मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस हमारा क्या है, व्हाट इज द सोर्स, मेन सोर्स। सो फर्स्ट इज, जो प्राइमरी सोर्स है, दैट इज fear and anxiety related to illness, and second is forced adaptations. fear है हमें कहीं ना कहीं अपनी बीमारी का, और जितनी भी चीजें हमारे ऊपर लागू की गई हैं, चाहे वो हमारा ड्रेस कोड हमें दिया गया हो नया कि हमें सैनिटाइजर लेना है, मास्क लेना है, अनलॉक फेज है, बाहर ऐसे जाना है, इस टाइम पे जाना है, ये सारी चीजों की हमें आदत नहीं थी, इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है। देन इंक्रीज इन प्राइमरी एंजाइटी, कहीं ना कहीं हम पहले भी एंजाइटी के शिकार हुआ करते थे, पहले हमारे पास बहुत सारे रोल्स हुआ करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी, अब थोड़ा सा शायद उस लेवल में हाइक आ गया हो, इसलिए वो परसेंटेज बढ़ रही है। Now how we will cope up? The only thing one who can control is your emotion is you. हम ही है जो हम अपने ब्राइटर साइड को बना सकते हैं। So it's up to you the choice. Avoid your white and black thoughts. It is important. Love yourself. अपने को पहचाने, अपना इंसाइट ले कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, किस चीज से आप अपना स्ट्रेस खत्म करते हैं, आप अपने को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स. What are the things which support yourself? One is cut down the excessive amount of screen. Take deep breaths, stretching exercises you can do. Regular exercise and sleep pattern अपना बनाए रखें. Try to eat healthy. कनेक्ट विद अदर्स, वर्चुअल मेथड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने लोगों से बात कर सकते हैं. डेवलप अ सेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. फिक्स योर डेली रूटीन, अपना रोज का रूटीन अच्छा रखें, एक्टिव रहें, रिलैक्स रखें, क्रिएटिविटी को ऑप्ट करें अपने. डोंट प्लान फॉर फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट ओनली. फ्यूचर में क्या होना है इसका भी किसी को नहीं पता, सो ओनली फोकस ऑन योर प्रेजेंट. Try to accept the situation. This will not change so soon. अभी नहीं. Said fix your daily routine. हमें अपना डेली रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, चाहे वी आर एट होम, वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, और वी आर गोइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और समवेयर. वी हैव टू फिक्स आवर शेड्यूल फॉर डाइट, फॉर आवर स्लीप पैटर्न,
for exercises. At least 30 to 45 minutes we should spend on our physical health. Then we should find ways to relax and be creative. हम जानते हैं हम किस चीज से खुश होते हैं. Few people loves music, कुछ लोगों को वर्कआउट पसंद होता है, किसी को खाना पसंद होता है, किसी को बनाना पसंद होता है. So it's up to you what thing you are opting for, जो आपको खुशी दे पाए. डोंट प्लान फॉर फ्यूचर, फोकस ऑन टुडे ओनली. आगे क्या होगा, करियर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे. डोंट बॉदर अबाउट द फ्यूचर, जस्ट प्लान योर डे. एंड इनफैक्ट इन योर डे रात में एक बार जरूर सोचें कि आपने क्या अच्छा काम किया, क्या अच्छे प्लान बनाए, किस तरह से उसको इफेक्टिवली आपने प्लेस किया. देन ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, दिस विल नॉट चेंज सो सून. अगर आपके घर में कोई पेशेंट है या आप खुद पेशेंट हैं या आप खुद स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, प्लीज अपने को समझाइए कि दिस इज अ सिचुएशन जो जल्दी नहीं जाएगी एंड वी हैव टू डील. हमारे पास अभी जिस हिसाब से रिकवरी रेट आया है, वी हैव गुड रिकवरी रेट, पेशेंट रिकवर हो रहे हैं. सो ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव साइड कि अगर हमें भी कुछ होता है या हमारे घर वालों को भी कुछ होता है तो एवरीबॉडी विल रिकवर सून. और दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने पेशेंट से ही सीखा है कि अगर हमें हो भी गया है तो इट्स गुड कि आगे 2-3 महीने के लिए हम लोग इम्यून सिस्टम बिल्डअप कर लेते हैं, एंटीबॉडीज अपने अंदर बना लेते हैं. सो डोंट टेक एवरीथिंग एज ऑन अ नेगेटिव साइड, ट्राई टू डिग आउट द थिंग्स जो उसमें आपको पॉजिटिव मिल पाए. फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. बाहर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लॉकडाउन है, सिस्टम नहीं है, कोई मास्क यूज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब जगह इधर उधर है. रादर देन पिन पॉइंटिंग टू अदर्स या दूसरे को वो करने की जगह अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर लें. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन पीपल हाउसेज जो अब इस वक्त हैपजर्ड पड़े हैं, वो अपना सेटल नहीं है, हर चीज इधर से उधर है. सो प्लीज क्लीन योर हाउस, अपना जो आपका एम्बियंस है उसको साफ रखिए, रूटीन को बिल्डअप करिए ताकि आपको अच्छा लगे. आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स पूरे लें बिकॉज दैट इज ऑन टॉप प्रायोरिटी. अगर आप उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल. सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल. दूसरे को हम नहीं कह सकते, वी कैन ओनली सजेस्ट देम, बट हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते. अडॉप्ट गुड कोपिंग स्ट्रैटेजीज. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लॉकडाउन फेज में कुछ लोगों ने कुछ गलत आदतें ऑप्ट करी, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की, ड्रग्स की, टोबैको की. डोंट गो फॉर दैट. आप इतने समझदार हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज से आप, कौन सी स्ट्रैटेजीज गुड है एंड कौन सी बैड. सो इफ आई फाइंड योगा इज बेटर एंड गुड, सो प्लीज गो फॉर दैट, नॉट फॉर अल्कोहल ड्रग. वो टाइम बिंग के लिए आपको शायद सेटल कर दे, वो एक दिन आपका अच्छा कर दे, बट इफ यू अडिक्टेड, आप उसका एडिक्शन अगर डेवलप कर गए तो अगेन इट विल क्रिएट अ मेंटल इशू, ट्रबल, और आपके फिजिकल एस्पेक्ट को भी वो हैम्पर करेगी. एंड दिस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास कुछ और नहीं है, ओनली वी हैव आवर इम्यून सिस्टम, जिसपे बार बार कहा जाता है कि उसको अपडेटेड रखें, उसको स्ट्रॉन्ग रखें. फिर भी अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, इतने टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो वी हैव सर्विसेज नाउ इन हॉस्पिटल्स. पेशेंट्स के लिए टेली काउंसलिंग की सर्विसेज हैं, कोविड पेशेंट्स के लिए भी हैं, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी हैं. डिफरेंट एनजीओज आर वर्किंग दीज डेज. डिफरेंट ऑनलाइन क्वेरीज के लिए आपके पास पोर्टल्स हैं, निमहैंस का पोर्टल है, वी हैव अब आरोग्य सेतु में पोर्टल्स हैं जिसपे आप तरह तरह के क्वेरीज पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके सिम्टम रिलेटेड मेंटल इश्यूज हो, चाहे वो आपके फिजिकल इश्यूज हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं. These days many colleges, many प्रिजल जैसे बहुत सारे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए वर्क कर रही हैं, जहां आप अपनी क्वेरीज पूछ भी सकते हैं और एक एक्टिव लिसनिंग से अपने कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीज आउट भी कर सकते हैं. सो प्लीज फॉलो दोज थिंग्स. थेरेपी एप्स भी आ रहे हैं मोबाइल में. अगर आप बहुत ज्यादा एंड्रॉइड को अगर सर्च करें तो यू हैव डिफरेंट थेरेपी एप्स, मेडिटेशन के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, यू विल फील रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए यू हैव डिफरेंट एप्स जो आपका साथ देती हैं, आपको स्टिमुलेट करती हैं कि आप उसको करिए, एंड यू विल फील रिलैक्स्ड. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दोज थिंग्स.
जो सबसे बड़ी बात है, सारी चीजें हैं हमारे पास आज के टाइम पे, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट द फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टेक इनिशिएटिव। कोशिश आपको करनी है, बढ़ना आपको है, पहला कदम आपका होगा, तब रास्ते नजर आएंगे। अगर आपने अपना ही इनिशिएटिव नहीं लिया, ऐप भी है आपके पास, काउंसलर भी आपके पास है, आपके पास फैमिली भी है, बट आप उनसे घुले मिले नहीं, आपने अपना वो आवरण, अपना जो प्रोटेक्टिव शेल आपने बनाया है, एक नेगेटिव ऑरा बनाया है, उसको अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। So the only one who can control your emotions is only you. So always think in mind, I am the master of my fate and the captain of my destiny. आप ही डिसाइड कर सकते हैं अपना अच्छा और बुरा। So please, वो सारे तरीके जिससे आप अपने को फिट रख सकते हैं फिजिकली एंड मेंटली, आप उनको फॉलो करें। And if you follow it sincerely and continuously, regularly, consistently, so you will find कि definitely आप अपने जितने भी आपके symptoms आ रहे हैं mental issues से related, you will fight it out. Lastly, I'll end up the session with the thing, the Stephen Hawking ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि things can get out of a black hole both ways, on the outside and possibly to the another universe. So if you are in a black hole, don't give up, there is a way out. हमारे पास रास्ता है, हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, we have to take patience, हमें समझ रखनी पड़ेगी, और पेशेंस, सब समझ और संयम, इन तीन चीजों के साथ अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज आप इस वक्त इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान यू आर फेसिंग, you will definitely deal with them. Now lastly, I'll say only stay calm and healthy, follow all the safety measures strictly, and my best wishes to all. In case if you have any queries regarding this presentation discussion, आप मुझसे पूछ सकते हैं, I'll try my best to sort out the queries. Ma'am, over to you. Uh, can you just stop screen share so that I can? Thank you so much, Dr. Sudhi. It's a really a wonderful session you have covered. Like mental health and the peace in this toughest time is very much important, as we know that anything that human is mentionable and anything that is mentionable can be more manageable, definitely. If we are surrounded by a positive vibes, the persons that give you happiness, and always we are just being with such like personas, so definitely we are just away from this anxiety, depression and dementia, whatever they are just consequently matlab, side by side they are relevant somehow. So when we talk about our feelings and they become less overwhelming, less upsetting and less scary, definitely. So your talk cover all the aspects, like what the ways we have to use for coping from this pandemic condition, definitely. If you are more towards using uh, the meditation and other things, so definitely it will work, it will boost up your happy hormones. So that is very much important, that you needs to surrounded by such a things. You in this toughest pandemic condition, you need to like more towards your hobbies. So that is This is a good time to stay with your hobbies, your creativity. yeah, So definitely. And this is the time you can enjoy with your family, family definitely. members. Definitely like many people has loses their jobs, like Aparna Verma has asked the question that losing jobs is nowadays a cause of stress. So how do we deal with this circumstances as well? So I think you can take this question. Ma'am, losing job, yes, of course, this is a uh, point of stress. But we have, if we have a good qualification, this is the only time
जब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड वी हैव टू सर्च अदर ऑप्शंस. जॉब केवल कोविड में नहीं है, वी हैव अदर टाइम्स आल्सो. वी हैव अर्लियर 2008 भी एक ऐसा टाइम आया था जब रिसेशन टाइम आया था, उस टाइम पे कोविड नहीं था. सो इस वक्त प्लीज गिव द प्रायोरिटी टू योर हेल्थ ओनली. अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, जॉब के लिए हम स्ट्रेसफुल रहेंगे रादर देन हेल्थ कंसर्न, तो वो गलत होगा. सो टेक योर हेल्थ ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट. सर्च आउट ऑल द ऑप्शंस जब आपका, जहां आप अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग जॉब. एंड थर्ड थिंग, यू आर नॉट अलोन इन दिस रेस. आप खाली अकेले इस जॉब रिसेशन को फेस नहीं कर रहे हैं. सो डोंट फील अलोन और आइसोलेटेड कि ये मेरे साथ क्या हुआ है. इफ यू हैव क्वालिफिकेशन, यू हैव कैलिबर, डेफिनेटली यू विल गेट अनदर जॉब. फॉर द टाइम बिंग आपको पेशेंस रखना होगा और अपना माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना होगा, और आप कहीं ऑप्शंस और भी ढूंढ सकते हैं रादर देन बीइंग एन एम्प्लॉय. बहुत सारे, इतनी सारी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे पॉलिसी वो निकाली है स्कीम्स. आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढ सकते हैं. आप वहां पे अपना ट्राई कर सकते हैं. और बहुत लोगों ने ये करा भी है. आई हैव सीन मैनी पीपल जिनकी जॉब चली गई है, बट उनकी जो हॉबीज थी उनको उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया है. सो ट्राई समथिंग न्यू जो आप कर सकते हो. एंड अपनी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको इस वक्त पहचानिए और उसको बाहर निकालिए. हमारी जो स्कूलिंग या एजुकेशन थ्रू आउट चली है, दैट इज ओनली क्वालिफिकेशन, हमारे पास जो डिग्री होती है. बट हम कभी अपनी क्वालिटीज या हमारी कैपेबिलिटीज जो स्किल्स हैं उनको सोचते ही नहीं है. सो दिस इज द हाई टाइम जब हम अपनी स्किल्स को भी पहचान सकते हैं. हमारी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, हम उनको कैसे एज अ प्रोफेशन यूज कर सकते हैं, ये भी एक सेकंड थॉट हम दे सकते हैं. सो इट्स अप टू यू कि आप उस सिनेरियो, उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं. और अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो जस्ट रिलीव ऑल द स्ट्रेस एंड स्पेंड दिस टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स. उनसे बात करिए, उनके साथ रिलैक्स करिए. समस्याओं को सॉर्ट आउट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके घबराने से सिचुएशन जाएगी नहीं. उसमें आपको पेशेंस रखना ही होगा. Hopefully I'll she's Hopefully she will get the answer of your question. And thanks, Dr. Sudhi, for wonderful deliberation you have given. You have covered all the aspects, and since we are connected virtually, please accept a token of appreciation from Brazil Foundation and from my side that you gave your valuable time with us. And definitely you have covered the mental retardation and what are the psychological issues and how we can cope up with this problems during this COVID-19 pandemic. And last but not the least, I just wanted to say that one small crick doesn't mean you are broken completely. It means that you were put in a test and you did not fall apart. Simply, message is that somehow we are facing this global pandemic in as a COVID-19, but this is a testing phase for all of us, and we have to face it, and we have to be uh, cope up with all these issues, and we will be come up with full of strength. Thank thank you so much for your words, and I thanks to all the participants as giving the time on this Prisal Atmanthan platform. Thanks so much. Over to you. well said, Professor Preeti. कि this is the high time when we can spend with our family members, we can enjoy their companies, we can chit chat with our relatives, we can dig out our activities. वो कॉलेज टाइम या वो अपना बचपन जब हमने क्रिएटिविटीज करे थे, वो शायद हम दोबारा कर सकते हैं. बच्चों को जो हमने कभी टाइम नहीं दिया या उनका बढ़ना नहीं देखा था या उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व नहीं करा था, वो हम देख सकते हैं. अपने स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दीज डेज वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज कि हम यूट्यूब पे कुछ भी नया सीख सकते हैं. एंड लोगों ने इतनी क्रिएटिविटीज करी है. सो इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम इन कंटिन्यूसली
thinking about the negative aspect. It's better to spend on 1 hour on a positive side, will definitely pay you back in a good term. So it's better to spend quality time, good time with your family members, with your friends. Virtually अगर आप जिनसे connect कर सकते हैं, I'll emphasis on this कि rather than chatting, rather than typing, it's better to chit chat video के through, क्योंकि we see emotions, we see expressions which will again boost up our happy hormones. हम लोगों को देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके expressions को catch up करते हैं. So जो लोग chat में बहुत believe करते हैं, rather than chatting, it's better to do video calling, लोगों से बात कर सकते हैं. So ये सारी एक्टिविटीज में प्लीज अपने को इन्वॉल्व करें. जिन लोगों के पास स्ट्रेस है रिगार्डिंग देयर कंडीशंस, अगर बीमार है वो डेफिनेटली ठीक होंगे, अच्छे रिकवरी रेट्स आ रहे हैं. ध्यान देना है उन लोगों को जिनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं. अगर वो स्ट्रेस नहीं लेते तो डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल रखेंगे, जो उन्हें हेल्प करेगा अगेन रिकवर करने में. वी हैव केसेस इन आवर हॉस्पिटल जिसमें 85 एंड 90 इयर्स के लोग भी ठीक हुए हैं. So age doesn't matter. It's up to you, your self confidence, your self esteem and your willpower. आप किस नजरिए से अपनी चीजों को देखते हैं. So change your attitude towards life, change your attitude towards the people. Definitely the world will change for you. Wonderful, wonderful, wonderful. Really, it's a practical aspect that you have to change your attitude. भाई परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना, चेंज करना, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना बहुत जरूरी है. और ठीक है, नो डाउट दिस इज द टाइम यू कैन कॉप अप विथ ऑल दिस, वॉट एवर द ड्रॉबैक्स, वॉट एवर द लूजिंग कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग यू हैव, यू लाइक इस टाइम के बाद आप निकलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे. तो इस टाइम को, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स यहाँ एसोसिएटेड है इस प्लेटफॉर्म पे, काफी को अपने फ्यूचर्स को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ये टाइम को आप रिसर्च राइटिंग में, अपने वोकैबुलरी पे, अपने स्किल्स पे आप करिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करिए. और डेफिनेटली हम लोग जो प्रिजल के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी टॉपिक ऑन डिमांड अगर हमें मिलता है, जो भी बोला जाता है, लाइक पब्लिक से ही हमें बोलते हैं मैडम आज हम चाह रहे हैं कि यू कैन कवर दिस टॉपिक, और फ्रॉम माय व्यू एंड फ्रॉम माय एज पर माय कंसर्न मैं सारे टॉपिक्स को लेना पसंद करती हूँ. और आज की डेट में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हाउ टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस एंड द मेंटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मेंटल वट एवर द रिटार्डेशन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. बिकॉज अगर हैप्पी हार्मोन नहीं एक्टिवेट होगा, और ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, ओबेसिटी, सब कुछ, दैट्स ऑल आर रेलेवेंट. So it's better. And this is a good platform. In fact, people are getting benefit from this, and I'm sure I'll definitely convey other people also to see these every Friday. I think you're doing this. Yes. So this is a very good platform. That is like for the self introspection, which is very much required to know ourselves. Every people has this strength. Every people has some quality. So you need to showcase that. So for that only reason we have started this Prizal Atmanthan talk show, and I appreciate really, your efforts. I really honor you to be a part of this. Thank you so much, and I heartily thanks to all the participants for being a part of this. Thanks.